everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about A to Z questions from all the popular magazines and journals that we have already dealt with yesterday. This video can be called as a continuation or a part 2 of the earlier video. If you haven't watched that video, please go and watch that particular video because that will give you a complete package kind of a feeling that this is the content that I received and these are the exact genuine questions that your examinations are asking, so that you know that you are on the right track. On that note, let's quickly begin. To start with the video, I will give you a quick glimpse. As you can see on your screens, there are so many magazines that we also talked about in our previous video. Different magazines talk about different content, different topic of interest and different audiences. These magazines are just an example to let you know that the 18th century magazines that became popular in the England in 18th century were acting as a platform to many new contributors, and people were coming, authors were coming and giving their views, their critical views, their essays, their any kind of political views that also led to controversies and so many things. We learned about when our magazines got popular and who were the writers who initially started, into how many editions their magazines were published, what are the different types of magazines, the magazine, periodical and the journal, and so many information. Now we are going to start with the questions and test and check that whatever we read yesterday was correct or not, or the things that we are receiving as a content, are the questions coming in those very way or there is something else. So question number 1 on your screens: who among the following edited the Cornhill magazine? I asked you people to put an emphasis on this particular point. The Cornhill magazine was famously edited by our William Makepeace Thackeray. William Makepeace Thackeray is the famous editor of our Cornhill magazine. Moving on to question number 2. Arrange the following periodicals in the chronological order in which they started publication. That means the dates that we saw yesterday, you have to remember the initial dates of their publication कि कौन सी 1704 में आई थी द रिव्यू, कौन सी 1709 में आई थी द टाटलर, एंड देन आपकी स्पेक्टेटर एंड सो मेनी. तो यहाँ पे आपके सामने यू आर गेटिंग द chronological, a jumbled up version where you have to chronologically put them up, and this is the most repeated question in UGC net. You will see in the video further that this particular question, having different combinations of different magazines, have been again and again asked. So the answer of this particular question is second, which is your Tatler comes first, and then you have your Spectator, and then you have your Rambler, the owner of whose is Samuel Johnson, and then you finally have the critical review. Moving on to question number 3, we have Charles Lamb used the pseudonym Elia for writing in which of the following periodicals? I already gave you a lot of information where we saw that different contributors or different owners of that particular publication or magazine used to use a particular pseudonym in order to wield their actual identity, and in that matter they used to give satirical essays for social and moral observation, so that people may not come to know that yes, this is exactly that person जिसने आपकी बुराई की है या फिर आप पे सटायर किया है. So the question that is being asked over here कि चार्ल्स लैम्ब जो अपने essays of इलिया के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने ये जो इलिया का सूडोनिम है उनका फेमस, वो कौन से वर्क में उन्होंने, कौन सी मैगजीन में सबसे पहले इन्होंने यूज किया है. So your answer becomes this, the London magazine. Now you have to keep this in mind that there might be so many information जो आपको कल के वीडियो में नहीं मिल पाएगी, बट आज के वीडियो में वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट की तरह काम करेगी. So you have to keep this in mind and also keep updating your notes that you also have to be open for new kind of information. London magazine is the name of that magazine जिसके अंदर चार्ल्स लैम्ब ने आपके essays of इलिया लिखे हैं, and this is some extra information for you all. The London magazine, which is the oldest cultural journal, 1732 में आपकी पब्लिश होती है, 1954 तक 1954 में रीलॉन्च की गई थी आपके जॉन लेहमैन से. ठीक है. Since its inception, its journal was published original poetry, short fiction, cultural reviews and scholarly essays. चार्ल्स लैम्ब यूज करते हैं अपना इलिया वाला pseudonym for writing in London magazine. Lamb wrote personal
and critical essays for this periodical. आप जब critical review करना चाहते हैं किसी और के वर्क का, then you definitely have to wheel in your identity. ठीक है? Question number 4 comes in again, a chronological kind of question. Arrange the following journals in chronological order in which they started publication. We have Tatler, Examiner, Review and Spectator. वहां पे दूसरे ऑप्शंस थे, यहाँ पे आपके लिए दूसरे ऑप्शन है. आई गेस आपको अभी तक आंसर इसका पता चल गया होगा. Which is this? So according to your dates, you have to remember कि आपकी chronological order क्या है इसका. Next comes our another question. Again, this is a question of chronological order. My aim in bringing in front of you again and again the same questions is that because I want you people to see the frequency. हम लोग को पता तो चले कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार रिपीटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसी फैशन में आपके कितनी बार पूछा गया है. दैट मीन्स कि आपके आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं. तो पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यही मेरा हमेशा एम रहता है दैट यू पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन योर पीवाईक्यूज. अगेन आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है आपकी 18th सेंचुरी की मैगजीन का, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है, आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा हम लोग जेंटलमैन्स मैगजीन के भी बारे में देखेंगे. दिस पर्टिकुलर मैगजीन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय एडवर्ड केप 1731 में. The monthly review was an English periodical founded by Ralph Griffith in 1745. ठीक है. Then the Rambler वो आपके सैमुअल जॉनसन ने फाइंड की थी 1750 में. देन द क्रिटिकल रिव्यू जो आपकी मैगजीन है जिसका ये पूरा नाम है 1986 में आपकी पब्लिश हुई थी बाय जेफरी फ्राइडमैन. सो ये आपके चारों मैगजीन्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट एंड इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन. अगर आप पीवाईक्यूज ही लगा के चले जाएंगे सो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू कि वो बार बार रिपीट होते हैं. अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से उनके लिए कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो आप खुद से देखिए फ्रीक्वेंसी, लगातार आपके 4 से 5 बार एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग आपके ईयर में पूछा गया है. दैट मीन्स इट शोज दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द डेट्स दैट आई मेंशन्ड yesterday and you have to learn and mark them up. This is the particular answer as you can see on your screens, the Tatler, Spectator, Examiner, Reflector. Okay, आगे हम लोग बढ़ेंगे. रिफ्लेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाटलर, स्पेक्टेटर इन सब के बारे में हम लोग को पता है, रिफ्लेक्टर के बारे में नहीं पता है. So whatever extra information I missed out yesterday will be completed today. The Reflector was a 19th century quarterly periodical which dealt with topics of philosophy, politics and liberal arts. The magazine was edited by Leigh Hunt and published by John Hunt. Now you have to comment me down below कि Leigh Hunt के द्वारा पब्लिश होने वाली कौन सी एक और मैगजीन थी जिसके बारे में हम लोग ने कल ऑलरेडी बात की है. Do comment me down below जिसका करेक्ट आंसर होगा. And the first one to comment about this particular topic, I will pin that particular comment. Okay, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को. मैच द पीरियोडिकल्स विद देयर राइटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स. अभी तक हम लोग देख रहे थे कि क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, बट आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. आपको बताना है कि द रैम्बलर के आपके ऑथर कौन है, द मैकमिलन्स मैगजीन के ऑथर कौन है, गार्जियन को किसने फाइंड किया है, बेंटलीज मिसलेनी को किसने फाइंड किया है. नो, ऐसे क्वेश्चंस में पॉसिबल हो सकता है कि आपको दो के बारे में नहीं पता हो. फॉर एग्जांपल आई विल टेक गेस कि आपको मैकमिलन्स मैगजीन के बारे में नहीं पता होगा, बेंटलीज मैगजीन के बारे में नहीं पता होगा. हम लोग रैम्बलर के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग द गार्जियन के भी बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही करके मैच करने की कोशिश करोगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा. Here is your answer where you can see the correct answers. I hope you are enjoying the questions and also feeling confident at the same time कि हम लोग ने बिल्कुल सही कंटेंट रिसीव किया है and उसी में से क्वेश्चंस हमारे बनते जा रहे हैं. Here I have an extra information for you. As you can see, you can take a screenshot of it. सारी चीजें आपके लिए already provided है. आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे. How did Richard Steele's Tatler appear every week and how many issues of
Tatler in total were published? I told you people yesterday कि Tatler एक ऐसा हमारा मैगजीन है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आपसे सबसे पहले तो पूछा है कि आपके कितने टाइम्स इन अ वीक वो पब्लिश होती थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट वो TTS में आपकी पब्लिश होती थी एक वीक के अंदर, सो 3 टाइम्स इन अ वीक, एंड इट यूज्ड टू हैव 271 इश्यूज। तो ये आपका आंसर बन जाता है 3 टाइम्स इन अ वीक, 271 इश्यूज। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग 18th सेंचुरी मैगजीन। अगेन अब आपके क्रोनोलॉजिकली ऐसे ना देके आपके हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको पता लगाना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजी आपकी क्या रहेगी। दिस इज द करेक्ट आंसर, टाटलर, स्पेक्टेटर, जेंटलमैन्स मैगजीन एंड द रैम्बलर। मतलब इससे हम लोग को ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग को वन थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर श्योर इज कि सबकी पब्लिशिंग डेट्स आपको याद रखनी ही रखनी है, तभी आपसे इतने सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक। I suffered from impaired eyesight. यू कैन सी यहाँ पे आई लिखा हुआ है एंड पेरेंथेसिस में है, दैट मीन्स ये कोई राइटर कोट कर रहा है। आई विल से दैट अगेन। आई सफर्ड फ्रॉम impaired eyesight, depression and poverty and left Oxford without degree. After a period as a teacher and my marriage to a widow twice my age, I left for London to begin writing for a magazine. I produced my own journal. Choose the correct answer identifying the writer, the magazine and the journal. आपसे सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि ये कौन सा राइटर है जो अपनी व्यथा बता रहा है। दैट मीन्स कि आपको उस पर्टिकुलर राइटर की थोड़ी सी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर मैगजीन में इन्होंने अपना काम या इनिशियल करियर स्टार्ट किया एंड आगे जाके फिर इन्होंने अपना खुद का जर्नल स्टार्ट कर दिया। आपको एक रफ टफ आइडिया लग चुका होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर राइटर इन माय यस्टरडेज वीडियो एंड वी हैव सैमुअल जॉनसन। ही वाज सफरिंग फ्रॉम एन इम्पेयर्ड आईसाइट, डिप्रेशन, पॉवर्टी। इनको बिना डिग्री के ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा था। ही वाज सो इनटू पॉवर्टी कि इनकी जो मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस थी, इनकी जो किताबें थी, इनको वहीं पे छोड़नी पड़ी थी बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू कैरी ऑल दोज बुक्स। तो इनको ऑक्सफोर्ड में ही छोड़नी पड़ी। देन अपनी पॉवर्टी में इन्होंने जहां जहां जॉब इनको मिली इन्होंने की, विच इज द जेंटलमैन्स मैगजीन। देन आगे जाके ये अपना जर्नल खुद का लेके आते हैं, द रैम्बलर। ये 9 साल लगा के एक फुल डिक्शनरी अपनी बनाते हैं एंड पब्लिश करते हैं, जिसके बाद इनको एक ऑनररी डिग्री ऑक्सफोर्ड में बुला के दी जाती है, चाहे इन्होंने अपनी डिग्री को पूरा किया चाहे नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ सैमुअल जॉनसन एंड वी हैव आल्सो गॉट द आंसर विद दीस इंफॉर्मेशन, सैमुअल जॉनसन, द जेंटलमैन्स मैगजीन एंड द रैम्बलर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द टाटलर अपीयर्ड थ्राइस इन अ वीक। द क्वेश्चन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, थ्राइस इन अ वीक तो ये अपीयर करती थी, लेकिन डेज आपसे एग्जैक्टली पूछे हैं, सो इट इज TTS। हम लोग की जो कोचिंग का टाइम होता था, इससे आप थोड़ा सा इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हो। तो ये आपसे क्वेश्चन टाटलर से पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव अगेन अ chronological question and the question is given in a quite wide way। आपके एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है जहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका क्रोनोलॉजिकल में जो पेयर है वो करेक्ट है। तो चारों में से आपको सही पता लगाना है, आपको डेट्स बिल्कुल जैसे होता है ना कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आप ये वाला आंसर कर पाएंगे एंड दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, I hope you all are enjoying and feeling confident at the same time. Question number 13, the periodical was started in 1709। 1709 सबसे famous magazine आपकी start हुई थी with a motive to expose the false arts of life। बातों में इनके words पे बहुत ध्यान दीजिएगा। To pull the disguise of cunning, vanity and affectation and to recommend a general simplicity in our dress and discourse and our behavior. The founder of the periodical wrote under the pseudonym Isaac Bickerstaff। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर मैगजीन की दी हुई है। इफ यू हैव अटेंडेड माय यस्टरडेज वीडियो, ये क्वेश्चन आपसे इंस्टेंटली अभी तक बन गया होगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे। इसाक बाइकरस्टाफ इनके जो राइटर हैं,
और फाउंडर है वो इस स्यूडोनिम के अंदर लिखते थे। 1709 में ये पब्लिश हुई थी। देन ये आपके फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि आपके सोशल ऑब्जर्वेशंस के बारे में ये पर्टिकुलर मैगजीन बात करती है। द आंसर इज द टाटलर, द फेमस मैगजीन जिसमें से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई वांटेड यू पीपल टू कीप इन माइंड यस्टरडे, कि ऐसे आपके यूजीसी नेट ने किसी को भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ इज टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज या फिर उनको करेक्ट करने के लिए। तो ये है आपका पर्टिकुलर आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपके दूसरे ईयर में पूछा गया है। सो सी हाउ यूजीसी नेट इज ट्राइंग टू गिव यू हिंट्स। अगर आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से देखते हो, पढ़ते हो, दैट मीन्स यू लिव इन पीवाईक्यूज, यू टॉक पीवाईक्यूज, यू वॉक पीवाईक्यूज एंड समथिंग लाइक दैट, आपको पता लग जाएगा, आपको स्ट्रैटेजीज पता लगेगी यूजीसी नेट वालों की कि किस तरीके से वो लोग अगला पेपर सेट करते हैं। This periodical has an award intention to enliven morality with wit and to temper wit with morality. The keyword over here is morality. जितने भी बच्चों ने मेरी कल की क्लास अटेंड की है या पिछला वीडियो देखा है, उनको तुरंत आंसर क्लिक कर गया होगा। To bring philosophy out of the closets and libraries, schools and colleges, and to dwell in clubs and assemblies as tea tables and coffee houses. It also promoted family, marriage and courtesy. ये सारी चीजें, moral values, संस्कार, ये सब आपके बात करते हैं हमारी द स्पेक्टेटर के अंदर, जो टाटलर के बाद आपकी सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, सो दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। आई होप यू आर फीलिंग गुड एंड कॉन्फिडेंट। अगेन question number 15, we have statement 1 and statement 2. The Victorian period also witnessed tremendous growth in periodicals of all kinds. Statement 2, many famous novelists published their work in serial installments in magazine. अब ये जो क्वेश्चन है आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपकी 18th सेंचुरी, जब आपका न्यू क्लासिकल एज चल रहा था, उसके बाद आपका जैसे विक्टोरियन एरा आता है, रोमांटिक एरा आता है, देन आपका विक्टोरियन एरा आता है। तो आपसे स्टेटमेंट 1 कहता है कि विक्टोरियन एरा ने भी ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी है आपके पीरियोडिकल्स में, which we saw that was in 19th century, and आपके फेमस नॉवेलिस्ट जो थे वो पब्लिश करते थे अपने वर्क को सीरियल इंस्टॉलमेंट्स इन दीज मैगजीन्स। तो आपको पता लगाना है कि क्या इसका आंसर है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं। क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं बिकॉज द काइंड ऑफ एरिया यूजीसी नेट इज कवरिंग इज completely vast. So reading questions in everyday basis is going to make your content very very rich, as I always say. आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर इंपॉर्टेंट मैगजीन्स इन लिटरेचर। नाउ कल हम लोग ने जितने भी मैगजीन्स देखी थी उनसे रिलेटेड हम लोग ने सारे देख लिए क्वेश्चंस। देन अदर देन दैट भी आपके बहुत सारे ऐसे जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स बच जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है कवर करना एक ही वीडियो में। तो क्वेश्चंस के ही जरिए हम लोग उनको देख लेते हैं। Question number 16, we have which of the following magazines self-consciously created an identity for the Vorticists, a group of painters, sculptors and writers. Now if you have seen my video on Vorticism, I have already told you people कि आपके बहुत सारे ऐसे movements आए हैं English literature में जिसके बारे में जो राइटर्स उससे एसोसिएटेड थे अपनी उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में बात करना चाहते थे, अपने एरा, अपने मूवमेंट के बारे में बताना चाहते थे, वेदर इट बी वॉटिसिज्म, वेदर इट बी ट्रांसेंडेंटलिज्म, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। तो वो एक अपनी मैगजीन छापते थे और अपने आइडियाज को उसमें डालते थे। तो आपके वॉटिसिस्ट कौन से थे? द ब्लास्ट मैगजीन से वो लोग एसोसिएट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। Here we have list of magazines: The Egoist, The English Review, The Blast and पोएट्री मैगजीन। आपको बताना है कि वो कौन से राइटर्स हैं जो इन पर्टिकुलर मैगजीन से आपके एसोसिएटेड है। इफ यू गाइस रिमेंबर, आई टॉक्ड अबाउट फोर्ड मिडॉक्स फोर्ड यस्टरडे, जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड वाली मैगजीन से आपके एसोसिएटेड है। देन द ब्लास्ट मैगजीन के बारे में हम लोग ने देख लिया। अगर आपने वॉटिसिज्म के सारे राइटर्स के बारे में आपको पता है तो आपको पता है विंथम ल्यूइस एंड एजरा पाउंड हमारे वॉटिसिस्ट मूवमेंट के अंदर आते हैं, तो ब्लास्ट उनसे कनेक्ट कर जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दो एटलीस्ट कनेक्ट करने हैं एंड इंस्टेंटली यू विल बी गेटिंग योर आंसर,
just answer number 3. Do update your notes if you see any particular thing which is extra. Here we come to an end of this particular video. I hope आपको वीडियो पढ़ के वीडियो के क्वेश्चंस देख के बहुत बहुत मजा आई होगी एंड आपको अच्छा लगा होगा कि कल जो हम लोग ने रिसीव किया उसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए हैं. देयर इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपने एकदम सही सोर्स से टू द पॉइंट कंटेंट अगर रिसीव किया है तो आपके कठिन से कठिन क्वेश्चंस यूजीसी नेट के बनने वाले हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वीडियो एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट you want to see on this platform. If you like such kind of videos, do hit the like button and you have to come on my telegram channel and join my telegram channel because कोई भी वीडियो आती है, कोई भी कंसर्न होता है मेरे स्टूडेंट्स को, दे come over there and chat with me. So you are also definitely welcome. See you up till then. Bye and take care. एक दूसरी वीडियो में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं. अपने व्यूज को जरूर से कमेंट्स में लिखा करिए, लाइक किया करिए so that I will know you better. Up till then, bye and take care.